ہر دور میں انسان نے ایک ہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر جذبہ اور سوچ بلند ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پتھروں کے دور سے لے کر آج کے ڈیجیٹل زمانے تک انسان نے اپنے دماغ اور محنت سے ایسے کارنامے کیے ہیں جن سے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ انہوں نے پہاڑوں کو چیر کر راستے بنائے، ریگستان کو شہروں میں بدلا اور آسمان کو چھو لینے والی عمارتیں کھڑی کر دی۔ یہ سفر صرف آرکیٹیکچر کا نہیں بلکہ انسانی ارادے، سوچ اور سیکھنے کی طاقت کا سفر ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ان 10 مہان چیزوں کے پاس جو انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہے، وہ چیزیں جو بتاتی ہے کہ انسان صرف جینے کے لیے نہیں بنا بلکہ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے بنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں نمبر 1 سے۔ نمبر 1، دی گریٹ وال آف چائنا۔ دی گریٹ وال آف چائنا دنیا کی سب سے بڑی مین میڈ سٹرکچر مانی جاتی ہے۔ اس کا نرمان لگ بھگ 7 سینچری BC میں شروع ہوا اور 17 سینچری AD تک چلتی رہی۔ یہ دیوار لگ بھگ 21,196 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ پہاڑوں، دریاؤں اور ریگستانوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اس دیوار کا کنسٹرکشن زیادہ تر قن ہان اور منگ ڈائنسٹیز کے دوران ہوا تھا۔ اسے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ منگول اور زیانگو جیسے دشمنوں سے چائنا کی بارڈر کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس میں پتھر، مٹی، لکڑی اور اینٹ کا استعمال ہوا۔ کچھ حصوں میں لائم سٹون اور رائس فلور سے بنا پراچین سیمنٹ بھی یوز ہوا تھا۔ ہسٹورینز کے مطابق ملینز آف ورکرز نے اس وال پر کام کیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ آج کے دور میں گریٹ وال آف چائنا صرف ایک ڈیفینسو سٹرکچر نہیں بلکہ ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے جو چائنیز سویلائزیشن اور ان کے سٹرگل کی پہچان ہے۔ نمبر 2، برج خلیفہ۔ دبئی میں لوکیٹڈ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے جس کی اونچائی 828 میٹر اور 163 منزلیں ہیں۔ اس کا کنسٹرکشن 2004 میں شروع ہوا اور 2010 میں پورا ہوا۔ اس کا ڈیزائن امریکن آرکیٹیکٹ ایڈرین سمتھ، سکائیڈمور، اوونگز اینڈ میرل نے بنایا۔ برج خلیفہ کا سٹرکچر ایک ٹرائی پیٹل اسپائرل ڈیزائن پر مبنی ہے جس کا کنسپٹ اسلامک آرکیٹیکچر سے لیا گیا ہے۔ یہ ڈیزائن ہوا کے پریشر کو توڑ کر عمارت کو مضبوط اور سٹیبل رکھتا ہے۔ بلڈنگ میں 1,60,000 کیوبک میٹرز کنکریٹ، 39,000 ٹن سٹیل اور 1,30,000 اسکوائر میٹر گلاس کا استعمال ہوا۔ اس کے ایلیویٹرز دنیا کے سب سے تیز ایلیویٹر مانے جاتے ہیں جو 36 کلومیٹر پر ہور کی سپیڈ سے چل کر آبزرویشن ڈیک تک پہنچاتی ہے۔ برج خلیفہ میں آفیسز، ہوٹلز، ریزیڈنٹل اپارٹمنٹس اور آبزرویشن ڈیکس ہیں اور یہ پوری دنیا کے آرکیٹیکچر میں انسانی انجینئرنگ کی بلندی کا سب سے بڑا ریفرنس ہے۔ نمبر 3، ایئر بس A380۔ ایئر بس A380 دنیا کا سب سے بڑا کمرشل پیسنجر ایئر کرافٹ ہے۔ اس کا فرسٹ فلائٹ 27 اپریل 2005 کو ہوا تھا اور 2007 میں اسے آفیشلی سروس میں انٹروڈیوس کیا گیا۔ اس پلین کا ونگ سپین 79.75 میٹرز، لینتھ 72.7 میٹرز اور ہائٹ 24.1 میٹرز ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 560 ٹنز تک کا ویٹ لفٹ کر سکتا ہے اور آسمان میں ایک فلوٹنگ سٹی کی طرح اڑتا ہے۔ A380 میں میکسیمم 850 پیسنجر تک کے لیے سیٹ ہوتا ہے اگر پوری اکانومی کلاس ہو، جبکہ عام طور پر یہ 500 سے 550 پیسنجر کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے۔ اس پلین کو رولز رائس ٹرنٹ 900 انجنز پاور دیتا ہے جو اتنا پاورفل ہے کہ یہ پلین 15,000 کلومیٹرز تک نان سٹاپ فلائی کر سکتا ہے بنا ریفیولنگ کے ایک پورا کانٹینٹ کراس کرنے تک۔ A380 کے کنسٹرکشن میں 30 لاکھ سے زیادہ پارٹس یوز ہوئے جو 20 الگ الگ کنٹریز میں مینوفیکچر کیے گئے۔ ان سب کو جوڑ کر ایک ایسا انجینئرنگ ماسٹر پیس تیار ہوا جو آج بھی ماڈرن ایویشن کی شان مانا جاتا ہے۔ نمبر 4،
लार्ज हैड्रन कोलिडर। लार्ज हैड्रन कोलिडर दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक मशीन है जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच जिनवा के पास लोकेटेड है। इसकी लंबाई 27 किलोमीटर है और ये जमीन के अंदर 100 मीटर गहराई में बना है। ये पार्टिकल एक्सीलरेटर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने बनाया। लार्ज हैड्रन कोलिडर में पार्टिकल्स को 99.1% लाइट स्पीड तक एक्सीलरेट करके टकराया जाता है ताकि उनसे यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स के बारे में समझा जा सके। यहाँ का टेम्परेचर 271 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है जो आउटर स्पेस से भी ठंडा है। 2012 में इसी लार्ज हैड्रन कोलिडर ने हिग्स बोसन पार्टिकल की खोज करके साइंस में एक नई हिस्ट्री लिखी। आज भी ये मशीन यूनिवर्स के ओरिजिन और मैटर एनर्जी के राजों पर रिसर्च कर रही है। नंबर 5, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी है जो हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाता है। इस प्रोजेक्ट को 15 कंट्रीज ने मिलकर अपने साइंटिफिक कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया, जिनमें यूएसए, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोप के कंट्री शामिल हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल वेट 4,20,000 किलोग्राम से ज्यादा है और इसका साइज एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसका पहला मॉडल 1998 में लॉन्च किया गया और तब से लेकर आज तक नए मॉडल जुड़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने तक रहते हैं और जीरो ग्रेविटी में बायोलॉजिकल, फिजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये ह्यूमन यूनिटी और साइंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नंबर 6, प्रीलड FLNG। प्रीलड FLNG दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है। FLNG का मतलब फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसकी लंबाई 488 मीटर है, यानी ये 4 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। इसका वजन 6 लाख टन से ज्यादा है। इसे शेल कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के समंदर में बनाया। ये एक फ्लोटिंग फैक्ट्री है जो समंदर के नीचे से गैस निकालकर उसे वहीं पर लिक्विफाई करता है। नॉर्मली गैस को जमीन पर ले जाके प्रोसेस किया जाता है, लेकिन प्रीलड FLNG ने ये सब कुछ समंदर के बीच ही पॉसिबल कर दिखाया। ये स्ट्रक्चर कैटेगरी 5 साइक्लोन्स का सामना कर सकता है और एक्सट्रीम तापमान में भी स्टेबल रहता है। ये एनर्जी इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी इनोवेशन है। नंबर 7, वंडर ऑफ द सी। वंडर ऑफ द सी रॉयल कैरेबियन कंपनी का क्रूज शिप है जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर शिप माना जाता है। इसकी लंबाई 1188 फीट और हाइट 238 फीट है। इसके 18 डेक्स है और ये 6988 पैसेंजर और 2300 क्रू मेंबर्स को ले जा सकता है। ये क्रूज 2022 में सर्विस में आया। इस प्रोजेक्ट में 8 मुख्तलिफ जोन शामिल हैं। हर जोन अपने खास डिजाइन और फ्यूचर के लिए मशहूर है। इनमें वाटर पार्क्स, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, गार्डन्स और शॉपिंग एरियाज जैसे दिलचस्प जगह भी शामिल है। नंबर 8, थ्री गॉर्जेस डैम। चाइना के यांगत्से रिवर पर लोकेटेड थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है। इसका कंस्ट्रक्शन 1994 में शुरू हुआ और 2012 में पूरा हुआ। डैम की लंबाई 2.3 किलोमीटर और ऊंचाई 185 मीटर है। इसमें 34 टर्बाइन्स लगे हैं जो कुल मिलाकर 22,500 मेगावाट तक बिजली पैदा करता है। ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए एनर्जी और फ्लड कंट्रोल दोनों में एक हिस्टोरिकल कदम था। इस डैम को बनाने की कीमत बहुत बड़ी थी क्योंकि 13 सिटी और 1500 गांव के लोगों को किसी और जगह पर शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन इसी कुर्बानी ने चाइना की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में एक नई क्रांति ला दी। नंबर 9, आकाशी केक्यो ब्रिज। जापान के अवाजी और होन्शु आइलैंड के दरमियान समंदर पर बना आकाशी केक्यो ब्रिज
दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है। इसकी टोटल लंबाई करीब 3.9 किलोमीटर है, जो इसे इंजीनियरिंग के दौर का एक करिश्मा बना देता है। इसका बीच का हिस्सा यानी मेन सेक्शन तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है, जो किसी भी सस्पेंशन ब्रिज के मुकाबले में सबसे बड़ा है। इसका कंस्ट्रक्शन 1988 से 1998 तक जारी रहा। इसके टावर्स 300 मीटर तक ऊंचे हैं, जो तकरीबन 100 मंजिलों वाली इमारत के बराबर है। ये ब्रिज इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि 8.5 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक्स और तूफानों को आसानी से झेल सके। नंबर 10, बिगर 293। बिगर 293 दुनिया की सबसे बड़ी लैंड व्हीकल है, जिसे जर्मनी की कंपनी टेक्राफ्ट ने 1995 में बनाया। ये एक बकेट व्हील एक्सवेटर है जो कोल और मिनरल्स निकालने के लिए माइंस में काम करती है। इसकी हाइट 315 फीट और लेंथ 721 फीट है। इसका वजन 14,000 टन से ज्यादा है। इसके व्हील पर 20 बकेट्स लगे हैं, जो हर सेकंड में 2,14,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी हटा सकता है। ये मशीन एक दिन में फुटबॉल स्टेडियम जितनी जमीन खोद सकता है। बिगर 293 के लिए एक पूरी टीम लगता है, ड्राइवर्स, इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स, जो इस मैकेनिकल जायंट को कंट्रोल करते हैं। इसकी हर मूवमेंट परफेक्शन के साथ मॉनिटर होता है, क्योंकि इस कदर बड़ी मशीन में जरा सी गलती हजारों टन मटेरियल के कोलैप्स का सबब बन सकता है। इस मशीन को मैकेनिकल जायंट कहा जाता है और ये इंसान की इंडस्ट्रियल पावर और इंजीनियरिंग के स्केल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दुनिया के ये सब अजीम करिश्मे, पुल जो समंदर के ऊपर लटके हैं, मशीन जो जमीन के अंदर काम करती है और शहर जो पानी के ऊपर ठहरते हैं, ये सब एक बात साबित तो करता है, जब इंसान अपनी सोच की हद से आगे बढ़ता है तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ये दास्तान उन हाथों की है जिन्होंने मिट्टी, लोहा और हवा को मिलाकर एक नई दुनिया बना दी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी पर किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपके लिए उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द सीक्रेट टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।